हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो कि हुआ था 2 नवंबर को शिफ्ट 1 में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पैसेज आ रखा है, तो हम सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे। पैसेज पढ़ने से पहले हमारे को क्वेश्चन पढ़ने होते हैं ताकि साथ साथ हमारे आंसर भी हमें पता चलते जाए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द बुक स्टोर्स प्रोप्राइटर स्पेशल एबिलिटी। ठीक है। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। Question number 3, select the correct summary of the passage. Question number 4, why did Emily enter the bookstore? Question number 5, how did reading the book affect Emily? अब हम अपने पैसेज को पढ़ लेते हैं। In the heart of a bustling metropolis, nestled amidst towering skyscrapers and ceaseless traffic, existing an unassuming bookstore, its shelves were laden with volumes of every genre imaginable, from classic literature to contemporary bestsellers. The scent of aged paper and leather bound tomes permeated the air, creating an ambience of tranquility and intellectual pursuit. The bookstore's proprietor, an elderly gentleman with a perpetual warm smile and twinkling eyes, was a veritable encyclopedia of literary knowledge. He possessed an uncanny ability to recommend the perfect book for any patron, regardless of their age and interest. His passion for literature was contagious, inspiring countless individuals to rediscover the joy of reading. One day, a young woman named Emily wandered into the bookstore seeking solace from the relentless pace of the city life. She was immediately captivated by the store's charm and proprietor's welcoming demeanor. As she browsed the shelves, she stumbled upon a worn copy of novel she had long forgotten. Intrigued, she purchased the book and retreated to a quiet corner to begin reading. As Emily delved into the story, she felt a sense of connection to the characters and their struggles. The book transported her to a different where world, one where her worries and anxieties seemed to fade away. She was so engrossed in the narrative that she lost track of time. Emerging from the bookstore hours later with a renewed sense of purpose and a newfound appreciation of her power of literature. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। बुक स्टोर प्रोप्राइटर की स्पेशल एबिलिटी क्या थी? रिकमेंडेड द परफेक्ट बुक। ये रहा, देखो मैंने अंडरलाइन भी किया था। परफेक्टली बुक फॉर एनी पेट्रॉन, रिकमेंडेड द परफेक्ट बुक फॉर एवरी पेट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। देखो थीम, इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है पूरे जो पैसेज में थी, कि रीडिंग पावर के बारे में बात हो रही है, कि जो एक जो प्रोप्राइटर था बुक स्टोर का, उसकी कितनी अच्छी रीडिंग, मतलब वो किसी को भी एज देख के या उसको परफेक्ट बुक बता रिकमेंड कर सकता था। और दूसरी, जब एमली जो गर्ल है वो एंटर हुई तो वो भूली गई कहाँ थी, वो पढ़ने में ही लगी रही। इसका मतलब पावर ऑफ रीडिंग की बात हो रही है ना, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा? द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज क्या है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। द importance of taking time for oneself is highlighted. The challenges of living in a busy city are explored. A young woman discovers a love for reading in a charming bookstore. फोर्थ क्या है? A bookstore owners helps a customer to find the perfect book. पैसेज में दो चीज़ की बात हो रही है। एक, जो बुक स्टोर का प्रोप्राइटर है वो किसी को भी बुक रिकमेंड कर सकता है, मतलब उसकी इतनी अच्छी पावर हो चुकी है, वो पहचान रखे। और दूसरा, जो एमली है वो डूब गई बुक्स, मतलब रीडिंग करने में, और जो उसकी एनेक्सिटीज़ थी, डिस्कम्फर्ट था, वो सब फेड अवे हो गई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ना, अ यंग वूमेन डिस्कवर्स अ लव फॉर रीडिंग इन अ चार्मिंग बुक स्टोर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि और वन सेल्फ इज़ टेकिंग टाइम फॉर वन सेल्फ ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। बिजी सिटी चैलेंजेस ये भी नहीं है एक्सप्लोर पैसेज में है।
कस्टमर फाइंड द परफेक्ट बुक, ऐसा। हाँ, अ बुक स्टोर ओनर हेल्प्स अ कस्टमर फाइंड द परफेक्ट बुक, हम ये पर्टिकुलर नहीं कह सकते हैं, उसमें मेन बात लव फॉर रीडिंग के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड एमली एंटर द बुक स्टोर? टू सेल हर ओल्ड बुक्स? नहीं। टू मीट अ फ्रेंड? नहीं। टू अटेंड अ बुक साइनिंग? नहीं। टू एस्केप द सिटीज नॉइस एंड बेस? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड रीडिंग द बुक अफेक्ट्स एमली? इट बोर्ड हर एंड शी कुडंट फिनिश इट? नहीं, बिल्कुल गलत। इट मेड हर वांट टू बिकम अ राइटर? नहीं। इट ट्रांसपोर्टेड हर टू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड गेव हर अ सेंस ऑफ पर्पस? यस, यही पैसेज में भी बताया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The company's stringent quality control measure ensured the product's excellence. stringent का क्या मतलब होता है? strict, severe और demanding। तो हमारे को इस एंटोनिम इसका ऐसा होना चाहिए जो कि हो नॉट स्ट्रिक्ट, माइल्ड। पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है? वेरी केयरफुल और प्रिसाइज, वेरी केयरफुल और प्रिसाइज। रिग्रेस, रिग्रेस का क्या मीनिंग होता है? एक्सट्रीमली थोरो, स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग। एक्सट्रीमली थोरो, स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग। एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग का क्या मतलब होता है? मेकिंग ग्रेट डिमांड्स, रिक्वायरिंग अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। मेकिंग ग्रेट डिमांड्स, require a high level of accuracy. lenient, lenient का क्या मीनिंग होता है? माइल्ड, टॉलरेट और नॉट स्ट्रिक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, select the option that can be used as one word substitute to best describe the magician's performance. The crowd erupted in applause as the magician pulled a rabbit from his seemingly empty hat. With a flourish, he levitated a volunteer from the audience, leaving everyone spellbound. His final trick, transforming a bouquet of flowers into a flock of doves, was met with the standing ovation. देखो, जो मैजिशियन की परफॉर्मेंस क्या है? सब लोग तालियां बजा रहे हैं, अप्लॉज कर रहे हैं और सबको चौंका दिया है, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा मैजिक दिखा रहा है जिससे लोग बहुत खुश हो गए हैं, है ना। तो ऐसे वर्ड के लिए हम ऐसे के लिए हम एक वर्ड या यूज़ करेंगे, एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग का क्या मतलब होता है? डिलाइटफुली मैजिकल और चार्मिंग, डिलाइटफुली मैजिकल और चार्मिंग। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शंस के भी मीनिंग देख लेते हैं। लैक लस्टर, लैक लस्टर होता है डल, अनइंस्पायरिंग। टेडियस, बोरिंग, टायरसम, बोरिंग और टायरसम। म्यूंडेन, म्यूंडेन का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी, डल, कॉमन प्लेस। ऑर्डिनरी, डल और कॉमन प्लेस। Question number 8. Sentence of a paragraph are given below in jumble order.
अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। देखो ऑप्शन देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, सी से, ई से एंड डी से। स्टार्टिंग या तो बी से हो सकता है, सी से, डी से या ई से। अब देख लेते हैं, बी पढ़ते हैं। गैस्पिंग द ब्रीथ एंड लाफिंग एट देयर नैरो स्केप दे एंजॉय द फ्यू मैंगोज दे हैड मैनेज टू कीप सेवरिंग द स्वीटनेस ऑफ बोथ द फ्रूट्स एंड देयर डेयरिंग एडवेंचर। मतलब स्टार्टिंग तो नहीं है, ये बीच का पॉइंट है, पता चल रहा है। सी, पैनिकिंग दे स्क्रैम्बल डाउन द ट्रीज ड्रॉपिंग सेवरल मैंगोज इन देयर हेस्ट टू एस्केप, ये भी बीच का है। D. Ravi and his friend sneaking the orchid at dawn, eyes gleaming with excitement as they spotted the ripe, juicy mangoes hanging from the trees. Yes, देखो रवि और उसके फ्रेंड ऑर्चिड मतलब उन्होंने डॉन में दिखा, एक उनकी आइज चुंधिया गई, मतलब एक्साइटमेंट हो गया उनको कि राइप जूसी मैंगोज ट्री से लटके हुए हैं। तो फिर उन्होंने ये सारा प्लान बनाया, गए, तोड़ा, खाया, फिर डर गए, गिर गए, है ना। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी से। एक ही है ऑप्शन डी से जो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। डी आएगा, फिर एफ, देन ई, सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A strong verbal attack on someone or something often for political reason. रीज़न का क्या मतलब होता है, मतलब रीज़न एक कॉज हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या जस्टिफिकेशन। यहाँ पे तो वर्बल अटैक है ना, तो वो नहीं हो सकता। मैं लिख देती हूँ रीज़न क्या, अ कॉज, एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव मतलब तुम्हारा गोल क्या है, एम क्या है, अ गोल और एम। एपोलोजेटिक का क्या मतलब होता है, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट और सेइंग सॉरी। एक्सप्रेसिंग रिग्रेट और सेइंग सॉरी। और पोलेमिक क्या होता है, पोलेमिक इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट और अटैक, वर्बल अटैक, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तो अ स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस टास्क रिक्वायर डैश एफर्ट्स देन द लास्ट वन। मतलब यहाँ पे बात हो रहा है अमाउंट ऑफ एफर्ट, और एफर्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लेस यूज होता है, लेस है ना। दिस टास्क रिक्वायर लेस एफर्ट देन द लास्ट वन, और कंपेयरिंग भी हो रहा है कि पहले वाले से कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट हमारे को इस वाले टास्क में यूज़ होगा। और देखो यहाँ पे देखो फ्यू और फ्यूअर दोनों के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होंगे। जैसे यूज विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, फ्यू के साथ हम एग्जांपल दे सकते हैं फ्यू बुक्स, है ना। और फ्यूअर हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूअर मिस्टेक्स, है ना। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है फ्यू और फ्यूअर। लेसर ऐसा कुछ सब याद नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आ गया ना ये। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। टू थ्रो समवन अंडर द बस। इस ईडियम का मीनिंग क्या है, टू बेट्रे और sacrifice someone for personal gain, to physically harm someone, to end a relationship or friendship abruptly, to ignore someone's peace for help or attention। नहीं, to throw someone under the bus मतलब अपने पर्सनल गेन के लिए किसी को बेट्रे करना या सेक्रीफाइस करना।
Option number 1 is the correct answer. Question number 12. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Dash inevitably of change shapes dash the course of history in ways unforeseen. Uh, the inevitably the inability of change shapes the course of history is always unforeseen. Yes, option number 2 is the correct answer, क्योंकि ये एक यूनिवर्स चेंज है तो उसमें द यूज होगा. Question number 13. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Critics who express doubt about the underpinnings of the current recovery are contemptuously shut down. तो contemptuously का क्या मतलब होता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Scorn, disdain or disrespect. Scorn, disdain और डिसरिस्पेक्ट. तो इसका एंटोनिम क्या होगा जो रिस्पेक्टफुल हो. स्क्रॉनफुली, यहाँ पे स्क्रॉन वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट. और कंटेम्प्ट. एप्रिशिएटिवली मतलब वही ये डिसरिस्पेक्ट था कंटेम्प्चुअसली का, तो रिस्पेक्टफुल एप्रिशिएटिवली का हम यूज़ कर सकते हैं रिस्पेक्टफुल. अप्रूवल, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव रिगार्ड है ना. अप्रूवल, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव रिगार्ड. bemusely in a confused or puzzled manner. In a confused or puzzled manner. Abhorrently is with hatred or disgust. With hatred or disgust. तो आंसर क्या हो गया हमारा. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Select the incorrectly spelt word in the given sentence. The exegetical profundity of his treatise revealed an intricate tapestry of metaphysical concept challenging conventional paradigm with its arcane insight. तो देखो सबसे पहले तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये होता है. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसका करेक्ट स्पेलिंग होती है एक्सेजेटिकली. EXEGETICAL. अब हम इनकी मीनिंग देख लेते हैं. एक्रेन का क्या मतलब होता है. मिस्टीरियस, अंडरस्टूड बाय फ्यू. by few. Profundity, great depth of knowledge or thought. Great depth of knowledge or thought. ट्रीटीज का क्या मतलब होता है. अ फॉर्मल डिटेल्ड रिटन वर्क ऑन अ सब्जेक्ट. अ फॉर्मल डिटेल्ड रिटन वर्क ऑन अ सब्जेक्ट. और exegetical is to explain, interpret or draw out meaning from a text. To explain,
interpret or draw out meaning from a text. Meaning from a text. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. ये पता नहीं 14. आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर एंड रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग. किस में से हमारे को आइडेंटिफाई करना है? इस वाले सेंटेंस में से. द डिसओबीडियंट स्टूडेंट ऑलवेज क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस इन द क्लास. देखो डिसओबीडियंट, दो स्पेलिंग ही गलत हो सकती है, एक तो डिसओबीडियंट या न्यूसेंस. DISOB, ये देखो ये तो सही है डिसओबीडियंट. न्यूसेंस NUISANC होता है. यस, NUIANC, ये आप देख लेते हैं. या तो डिसओबीडियंट की स्पेलिंग गलत होगी, न्यूसेंस की. द डिसओबीडियंट स्टूडेंट ऑलवेज क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यूसेंस इन द क्लास. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स ये मैं आप बहुत बार करा चुकी हूँ. जो मैंने एक ईडियम वाली क्लास ली थी मैराथन, उसमें भी स्पिल द बीन्स कराया था. और पहले मतलब जो सितंबर अक्टूबर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना, उसमें ये स्पिल द बीन्स ईडियम बहुत बार पूछा है. तो स्पिल द बीन्स ईडियम का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The ending of the movie was very heavy, wordy, fast. ये predictable. देखो जो heavy है ना, heavy word हम मूवी के एंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हैवी का मतलब होता है वेटेड, सीरियस. तो ये नहीं हो सकते हैं. वर्डी, वर्डी मतलब टू लेंदी या टू मैनी वर्ड्स, तो वो भी मूवी के एंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. फास्ट, फास्ट इज़ रिलेटेड टू स्पीड, तो मूवी का एंडिंग स्पीडी फास्ट होगा ऐसे नहीं बोल सकते हैं. प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल मीन्स मूवी का एंड ऐसा था जो हम एडवांस में ही बता दिया कि यही होगा एंड, है ना. तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. Select the most appropriate option to fill in the blanks. If no article is required, select the option with no article required. I heard dash news of the cancellation of dash exams on television. देखो न्यूज़ है, एग्ज़ाम की कैंसिलेशन के लिए न्यूज़ आई है, तो वो जो न्यूज़ है वो एक पर्टिकुलर न्यूज़ होगी, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे द. और वो एग्ज़ाम्स, कौन से एग्ज़ाम्स, यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्क्राइब नहीं करा है कि UPSC के एग्ज़ाम्स, या 10th बोर्ड एग्ज़ाम, 12th बोर्ड एग्ज़ाम. तो ये एग्ज़ाम्स एक नॉर्मल एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. तो हमारा आंसर क्या हो गया? आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम्स ऑन टेलीविजन. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. Select sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो किससे स्टार्ट हो सकता है? सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लो, F से, C से, E से या B से. बी पढ़ते हैं. एज शी एंटर्ड द एग्ज़ाम हॉल. कौन बताया नहीं है अभी, पहले शी के बारे में भी तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना, तो बी से हो नहीं सकता. अब पढ़ते हैं सी. नैना हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एन IAS एग्ज़ाम फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, पोरिंग ओवर काउंटलेस बुक्स एंड अटेंडिंग ग्रूलिंग कोचिंग सेशंस. यस, सी से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मतलब नैना से स्टार्ट हो, सी, ऑप्शन सी से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो शी यूज़ किया था वो यहाँ पे बता दिया. और ये यहाँ पे ये एक तरह से कह सकते हैं ये इंट्रोडक्शन है पूरे पैसेज का. तो सी से स्टार्ट हो गया, ए की स्टार्ट है. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. अब एक बार हम पढ़ लेते हैं. सी के बाद आएगा ए. ऑन द डे ऑफ एग्जाम शी वॉक अप विद अ मिक्सचर ऑफ नर्वस एंड एक्साइटमेंट, फीलिंग द वेट ऑफ हर ड्रीम्स ऑन हर शोल्डर्स. Then B, as she entered the exam hall, she took a deep breath and focused on the task ahead, determined to give it her best shot. Then D, the questions were challenging, but she stayed calm and used her knowledge and reasoning skills to tackle each one. Then F, when she finally put down her pen, a sense of relief washed over her, knowing she had done everything she could. Then E, last is months later, she received the news that she had passed with flying colors. Her hard work and perseverance pays off, as she remarked
on a new journey to serve the country. Serve her country. Option number 3 is the correct answer. Question number 20. Select the most appropriate option to fill in the blank. Among the 4 finalists, she is the, देखो the के साथ हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग. और देखो सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर करती है एक पर्सन को सब से, है ना. और जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, मतलब मोर डिजर्विंग, वो आपको कंपेयरिंग विद 1 और 2, 1 पीपल और थिंग. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ में भी आई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम ग्रुप पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.